economics is concerned with resources, resources utilization, all those things related with the mainly with the producer, consumer, resources, theory, and so many things are there in economics. So ultimately, if you have to understand the working of an organization, the working of the environment, how it is working, in order to run an organization successfully, you have to understand the economic environment of the country, right? So before understanding economic environment, the first thing we have to understand is the economic system. The economic system that prevails in a country, because we have different type of economic system that prevails. So what is economic system basically? Economic system refers to a set of principles and techniques by which a society decides and organizes the ownership and allocation of economic resources. That means in a society, किसी भी society को आप ले लो, एक society में हमारे पास resources होते हैं, right? In our society, we all know that we have resources, and resources are limited. This also we know. Resources are always limited. We don't have abundance of resources, and we have so much of resources that we can use it in any way. So this there has to be a decision regarding the allocation of resources. That who gets the resources and in Yes, what amount. yes, in a very optimum manner, so that optimum utilization of resources will take place. ठीक है ना? We will try to use the resources in a manner which will reduce its utilization. I would minimize the utilization of the resources, minimum cost, maximization of revenue. This is the basic aim of any businessman, right? So now, Like one, uh, they go for sustainable use of resources, like ताकि अभी current generation का जो demand है वो भी पूरा हो, और like future generation का demand भी like sacrifice नहीं हो उसमें. yes, that is sustainability development. Now, very good. Sustainability concept is there. I think we discussed about sustainability in marketing as well, right? So, so mainly we have this concept of people, profit, people, planet, and profit. And now planet is at the topmost priority in our sustainability concept. So in economics also, since in economics we are discussing about the allocation of resources, here we are discussing about the optimum manner. So we would always try to minimize the costing as well. सस्टेनेबिलिटी नो डाउट वुड सस्टेनेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को मिनिमाइज कर रहे हैं, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करो. तो जब हम कम से कम मिनिमम यूज करने का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, सस्टेनेबिलिटी एंड देन वी कैन मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट. हमारा प्रॉफिट मोटिव भी वहीं से आ जाएगा. मेनली हम लोग जब सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वी आर कंसर्न विद थ्री थिंग: प्लैनेट, पीपल एंड देन दी प्रॉफिट. प्रॉफिट कम्स एट लास्ट स्टेज. ठीक है, बट इन एनी वे द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज अवर सोसाइटी, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि वहीं पे डिसाइड होगा कि हमारे रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करना है. द ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ऑल दोस थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस ओनली. ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. सो नाउ प्लानिंग, हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी है वो हमें देखना है कि हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस तरीके से हम यूज करेंगे, किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चरिंग होगा, सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, ऑल दोस थिंग्स. So accordingly, we have three types of economic system. Three types of economic system क्या-क्या हैं? First is capitalism. हमारे economic system में first is our capitalism. You must have studied about this, I suppose. तुमने पढ़ा इसको? Socialism. नहीं, ये नहीं था. ये नहीं था. अच्छा, ठीक है. जो था, जो तुमने पढ़ा है वो तो तुम अच्छे से ही उसको स्टडी करते हो, मुझे पता है. You're a good student. तो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं था तो उसको मैं पढ़ा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे तुमने सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक बार में समझ लिया, तो ये बहुत बड़ी चीज है कि दैट यू रिमेम्बर व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज. अगर आप इस सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हो एवरी टाइम, व्हेनेवर, इवन आपके पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत पैसे हैं, बहुत रिसोर्सेज हैं आपके पास, ठीक है, स्टिल अगर आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने ध्यान में रखो
एज अ प्रोड्यूसर एज वेल एज अ कंज्यूमर, कि भाई मेरे पास है लेकिन कल की डेट में औरों के लिए भी होना चाहिए। तो अगर ये हमेशा हमें ध्यान रहता है कि सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेन करने के जो लिए अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, तो क्या हम लोग अपने रिसोर्सेस को ऑटोमेटिकली कम यूज करेंगे, तो वो सस्टेनेंस मुझे भी फायदा देगा और नेक्स्ट जनरेशन को भी फायदा देगा, एंड नो डाउट अवर मदर अर्थ। तो एज अ प्रोड्यूसर बोलिए या एज अ कंज्यूमर, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रही हूँ। जैसे एज अ कंज्यूमर भी ज्यादा क्यों खर्च करना, जितनी जरूरत है हम उतना ही खर्च करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हो गया सस्टेनेबिलिटी का। सो दैट वी कैन, ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे हैं तो आई विल स्पेंड अननेसेसरीली, जितनी जरूरत है हम उतना ही खर्च करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलना चाहिए। तो अगर बचाएंगे तो ही मिलेगा ना। अगर तुम ही आज के डेट में 100 एक 100 टी शर्ट खरीद रहे हो एक एक महीने में, विच इज अननेसेसरी वेस्टेज, उतनी जरूरत तो है नहीं पहनने की। तुम्हारे पास पैसे होने से भी तुम बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि तुमको ये सोचना है कि सस्टेन करना है, नेक्स्ट जनरेशन क्या पहनेगी अगर मैं इतना बर्बाद करूंगा तो इसी वजह से जब हम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स के संग जोड़ देते हैं ना, व्हेन मिक्स अप दिस टू कॉम्बिनेशन, एक बहुत अच्छा और भी एक बहुत क्या बोलते हैं, एक स्कीम्ड टाइप ऑफ स्कीम्ड मिल्क जैसा एक बहुत अच्छा क्रीमी आपको एक ऑप्टिमाइजेशन देता है कि आपको और भी अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करना है अपने रिसोर्सेज को, वो एक बहुत अच्छा एवेन्यू देता है। सो नाउ लेट अस डिस्कस, हमें ये समझ में आ गया कि समाज सोसाइटी क्या है, और सोसाइटी में रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज की एलोकेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है इन अ सोसाइटी। So this is dependent to some extent on the economic system that is prevailing in our society. Now there's also one important concept which we should know, that is LPG. LPG के बारे में हमने सुना है, लाइक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीन चीज जो है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत फास्ट पेस में काम कर रही है। दैट इज एलपीजी में फिर से रेफर कर रही हूँ, लिबरलाइजेशन, बिकॉज इकोनॉमीज आर नाउ बीइंग लिबरल। जितनी ज्यादा लिबरल हो रही है उतनी ज्यादा फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि वी आर इनवाइटिंग पीपल टू कम हियर टू डेवलप, to invest their resources, to set up manufacturing plant. तो इसलिए we are becoming more liberal, we are becoming privatized। तो privatization भी बहुत हो रही है, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज अभी प्राइवेटाइज हो गई है। एंड ग्लोबलाइजेशन तो हमें पता ही है that we are now, the entire world is a global village for us because we can operate from anywhere and to anywhere, कहीं पर भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए हमें अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना है, इकोनॉमिक सिस्टम पे जो बनाना है, काम करना है। तो इसमें तीन मेन हमारे इकोनॉमिक सिस्टम है। जो फर्स्ट वन इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब क्या है, यहाँ पे सारी चीजें जो होता है ना प्राइवेट ओनरशिप के ऊपर, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, एवरीथिंग इज प्राइवेटली ओन, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप, यस एकदम प्राइवेट है। जैसे अल्टीमेट मोटिव ऑफ द कैपिटलिस्ट, आप ये जो प्राइवेट ओनरशिप मतलब ही है, इट इज टोटली कैपिटलिस्ट सोसाइटी, और यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज ओनली प्रॉफिट मोटिव। तो मुझे जहां प्रॉफिट दिख रहा है मैं वहीं पे इन्वेस्टमेंट करूंगी, जहां पे डिमांड दिख रहा है मैं वहीं काम करूंगी, इस तरीके का हो जाए, ठीक है। लाइक यूके ले लो, यूएसए ले लो, ये सब आ गया आपका। देयर इज मच डिबेट ऑन हाउ टू डिफाइन कैपिटलिज्म। Some proponents of capitalism like Milton Friedman tend to emphasize the role of efficient free market, which they claim promote individual freedom and democracy. एक्चुअली क्या कैपिटलिज्म जो ये है, ये आपको एक इंडिविजुअल फ्रीडम और डेमोक्रेसी दे रहा है, बिकॉज आप अपने हिसाब से, आपके पास पैसे हैं, यू आर सर्विंग द मार्केट, यू आर चेकिंग द प्रॉफिट मोटिव, यू आर चेकिंग द प्राइस मैकेनिज्म। इकोनॉमी में जब प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है, प्राइस मैकेनिज्म एक्चुअली क्या होता है, ये आपका जो डिमांड और सप्लाई का एक रोल होता है इकोनॉमी में, वो कहाँ पे इक्वेट कर रहा है, व्हेन डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ द इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट्स द प्राइस फॉर एनी प्रोडक्ट और एनी मार्केट प्राइस, ठीक है। सो दिस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ओनली, वो मैं और भी पढ़ाऊंगी डिटेल्स में। सो कैपिटलिज्म में सारी चीजें जो है ये आपका प्राइवेटली डिसाइड होगी, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। दिस आर द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये तो आपके फ्री फोर्सेस हैं एकदम, whom टू प्रोड्यूस, तो ये सारी फ्री फोर्सेस हैं। ये कैपिटलिज्म पूरी तरह से प्राइवेट ओनरशिप है और वो अपने प्राइवेट मोटिव के ऊपर
मैन मेड नेचुरल नेचर मेड कैपिटल उन लोग इसको यूज करते हैं. सो कैपिटलिज्म इज बेसिकली अ सोशल सिस्टम based on the principle of individual right, and advocate of laissez-faire is known as capitalist. Laissez-faire refers to the system where the government has no role to play. Laissez-faire हमने पढ़ा है ये वर्ड, पहले भी हमने इसकी पढ़ाई की है. ठीक है, बताते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है. Laissez-faire हम लोग बोलते हैं when government has no role to play, बोलते हैं laissez-faire. ठीक है, ये हो गया आपका. लेजर फेयर तो एक मैनेजमेंट स्टाइल भी है ना. हाँ, laissez-faire, this term is used for anywhere where there is no intervention. laissez-faire का सिंपल सा फंडा है no intervention. So यहाँ पर कैपिटलिज्म में हम लोग बात करें गवर्नमेंट की, क्योंकि स्टेट मस्ट इंटरवेन. अगर देखो प्राइवेट प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे हो, बट उसका नुकसान भी हो सकता है, सोसाइटी को प्रॉब्लम भी कर सकती है. बट laissez-faire क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवेन. तो इस तरीके से कैपिटलिस्ट को एक फ्री हैंड हो जाता है, आपको जो इच्छा वैसे करो. बट नो डाउट कैपिटलिज्म सोसाइटी में बहुत एडवांटेज भी होता है. जैसे इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म है लाइक राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. आपके यहाँ पे अपने इनहेरिटेंस कुछ प्रॉपर्टी है, आपने कुछ बनाया है, कुछ खरीदा है, सो दैट इज योर राइट टू योर प्रॉपर्टी. लेकिन इसका मेन प्रॉब्लम है क्योंकि आप अपने बहुत जिसका प्रॉपर्टी है वो उस प्रॉपर्टी से और प्रॉपर्टी बना रहा है और प्रॉपर्टी बना रहा है. तो अगर आप बहुत ज्यादा देखो कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा अगर ओरिएंटेशन हो गया तो उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअर, एंड देयर राइजेस अ वाइडर गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है जब हमारा एंटायर सोसाइटी कैपिटलिज्म फ्रेमवर्क पे काम करता है. बट काम होता है यूएसए यूके वगैरह कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वहां पे प्राइवेट ओनरशिप है, वो अपने प्रॉफिट मोटिव देखते हैं और अपने दे हैव फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज. वो जो इच्छा वो अपने हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेसेस दे कैन एंटर इनटू ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, दे कैन डू व्हाटएवर दे फील लाइक फॉर डूइंग अ बिजनेस. फ्रीडम ऑफ चॉइस बाय द कंज्यूमर्स. अब कंज्यूमर्स के लिए भी चॉइस है क्योंकि बहुत देयर इज नो कंपल्सन कि हमें ये पर्टिकुलर कमोडिटी या पर्टिकुलर सर्विस यहीं से खरीदनी है, क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शंस बहुत हो रहे हैं एज ए कंज्यूमर. प्रॉफिट मोटिव एज आई टोल्ड यू. देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट. कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम क्या होती है, एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. कैपिटलिस्ट एक तरह से दे आर टर्म्ड द हैव्स एंड द वर्कर्स ऑन द अदर हैंड आर हैव नॉट्स. कैपिटलिस्ट एक ग्रुप ऑफ मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, सोसाइटी का एक पार्ट हो जाता है जिनके पास सब कुछ है, और वर्कर्स एक पार्ट हो गया, एक कम्युनिटी का एक पार्ट हो गया जिनके पास कुछ नहीं है. तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हो जाते हैं, तो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी लग जाता है. Then uncoordinated nature, as there is no singular authority to control the activities of the economy, the economic system becomes uncoordinated. ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है. Control with entrepreneurs role यहाँ पे. हाँ, आपका एक से ऐड नहीं है. एक मिनट सर.